Hi students, good morning, and let's continue with the topic of application of derivatives. And we were discussing the topic yesterday. We did complete the word that was errors and approximation, and we found out that how the first principle rule can be used to calculate various approximations and errors. Now today what we are going to do is we are going to take the same topic forward with the second topic, and we'll be completing the second topic today. And this was a request also in today's video that sir, can you post certain questions based on this exercise? So I thought let's start. Now the name of the topic is derivative as a rate measure. Pardon me for the handwriting, it's looking so clumsy because I needed to write around 5 questions and I needed some space also on the board, and of course I cannot pick again and again R.D. Sharma or R.S. Agarwal or the NCERT textbook right now, so that's the reason why. Anyway, what do you mean by the word derivative? Derivative means differentiation, of course, with respect to anything, as a rate measure. Now, how can you calculate the rate at which the things are, changing? Sir, what do you mean by this? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. Derivative का मतलब change in. से suppose करो कुछ basic चीजें. जब भी हम लिखते हैं d by dx और this means final minus initial, final minus initial. तो पहली तो आप चीज़ें ये समझ लो हमेशा, जब भी कोई चीज़ की स्पीड, लेट्स से एग्जांपल, किसी चीज़ की स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, इफ द स्पीड वुड बी इंक्रीजिंग, देन इफ यू आर गोइंग टू सबट्रैक्ट फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि पहले स्पीड जो इनिशियल स्पीड होगी वो कम होगी एंड फाइनल स्पीड ज़्यादा होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो साइन हमेशा पॉजिटिव आता है. बट जब भी किसी चीज़ में आप रिटार्डेशन कर रहे हो या ब्रेक्स लगा रहे हो, देन क्या हो रहा होगा, पहले वो चीज़ जा रही है 50 किलोमीटर के स्पीड से पर आवर के स्पीड से, और अब वही बॉडी जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. दैट मीन्स दैट 20 माइनस 50 फाइनल माइनस द इनिशियल, क्योंकि ब्रेक लगाया आपने, तो इनिशियल वेलोसिटी था 50, फाइनल हो गया 20, सो 20 माइनस 50 इज गोइंग टू बी -3. दिस इज नोन एज चेंज इन और the derivative as the rate measure. Now let's use some of these parts to actually calculate, as in how can we use this differentiation to calculate certain word problems. But before I move, let's write certain formulas so that you guys have got clarification. So first is volume of sphere. Volume of sphere, it should be equals to 4/3 pi r cube. Okay. Then comes second, volume of cube, that should be equals to side cube. Then comes volume of cylinder. They all are class 10th formulas, so it should be equals to pi r square h. Then comes volume of cone. It should be equals to 1/3 pi r square h. Okay. Then is volume of cuboid. That is L into B into H. Then comes 6 area of circle. ये तो बच्चों का फॉर्मूला है गाइस, मालूम ही होगा आपको. That is pi r square. Circumference of a circle, circumference of circle, and it should be equals to 2 pi r. Okay. Now you all must be knowing guys the word parametric functions. मैंने आपको parametric functions already बता दिया था, जिसमें आप एक टर्म, मतलब आप दोनों टर्म्स को y और x को आपको वेरिएबल मानना पड़ता है, एंड देन फिर आप सॉल्व करते हो. So I'll solve first of all certain question and then I'll tell you the tips and the tricks of these parts. So let's see. Okay, so the first question goes something like this. So I'm writing the first question. A balloon which always remains spherical. इसका मतलब है ये sphere से related कुछ बात कर रहा है. ये बोल रहे हैं बलून जो हमेशा spherical रहता है. अब यदि कहीं ये spherical रहता है तो ये छोटा भी रह सकता है और बड़ा भी हो सकता है ना. यदि अब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉमन सेंस से क्या चीज चेंज होगी, इसका रेडियस चेंज हो जाएगा. So let's see. A balloon which always remains spherical has a variable radius. तो इसका जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है.
हमेशा ध्यान रखना गाइस, जब भी आप कभी भी किसी चीज के रेट के बारे में बात कर रहे होते हो, डिनोमिनेटर में हमेशा किससे कंपेयर करते हो? टाइम से। दैट मीन्स सपोज करो रेट एट विच ही इज ग्रोइंग, दैट मीन्स ग्रोथ अपॉन टाइम। रेट एट विच द रेडियस इज ग्रोइंग, dr by dt. Rate at which height is increasing, dh by dt. Rate at which the work is being done, dw by dt. Rate at which power is changing, dp by dt. हर एक में डिनोमिनेटर में dt ही आता है, क्योंकि आप रेट की बात कर रहे हो। रेट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, तो उसका रेडियस जो है वो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच, तो उन्होंने बोला इट इज अ वेरिएबल रेडियस, तो यहां पर लिख देते हैं dr by dt should be equals to dr by dt, because I don't know dr by dt क्यों लिखा, बिकॉज यहां पर रेडियस इज चेंजिंग, रेडियस इज वेरिएबल, तो यहां लिख देता हूं बिकॉज रेडियस इज वेरिएबल। कॉमन सेंस है, टाइम भी तो चेंज हो रहा होगा तभी तो रेडियस बढ़ेगा। जब आपने बलून में ब्लो करा होगा एयर, तो वो इतना होगा, 10 सेकंड बाद में इतना हो जाएगा, 20 सेकंड बाद में और इतना हो जाएगा, और आगे मत जाना, फूट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हैज अ वेरिएबल रेडियस। नाउ फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द रेट, रेट फाइंड करो जिस स्पीड से उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब है आपको dv by dt भी उन्होंने बोला है फाइंड करने को, मतलब दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। ओके, फाइंड द रेट एट विच द इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सो ये बोल रहे हैं आपको ये बताना है कि इसका बाय द वे वॉल्यूम कितना होगा जब इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। मुझे कुछ नहीं मालूम dr by dt dv by dt क्या फाइंड करना है, नो आइडिया गाइस। व्हाट आई नो, इन्होंने बोला है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मतलब इस बार वो मुझे dv by dt नहीं पूछ रहे हैं, वो मुझसे क्या पूछ रहे हैं, dv by dr। आप बोलोगे सर dr क्यों? विथ रिस्पेक्ट टू, इस बार टाइम नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस है, तो मैंने वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं दिया, इसलिए मैंने dr by dt लिख दिया था। ओके, बट खैर अब तो मालूम पड़ गया कि अब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो जो हमें वो चीज आती है पहले हम वो लिखते हैं। सो इन्होंने बोला था वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 4/3 pi r क्यूब। यही होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 pi r क्यूब। उन्होंने आपसे पूछा क्या है, दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट dv by dr, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो क्या करूंगा, सिंपल dv by dr, बिकॉज वॉल्यूम निकालना है तो dv by dr। अब देखो यहाँ पे ऑपरेटर कौन है, r, इसका मतलब उसका मालिक कौन बन जाएगा, r, वो इसी को पहचानता है। सो ये 4/3 पाई तो बाहर कांस्टेंट हो जाएगा, d by dr of r cube, correct? Now let's see, dv by dr should be equals to 4/3 pi, तो बाहर कांस्टेंट है, और r क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू r, 3 आगे एक पावर कम, दैट इज 3r स्क्वायर, करेक्ट? क्योंकि आपने तो r के टर्म्स में लिया ना, तो ये आ गया r क्यूब का 3r स्क्वायर। So dv by dr should be equals to 4/3 pi 3r square, and 3 cancel. So it should be equals to 4 pi r square. And what is this? dv by dr. But उन्होंने आपको बोला है with respect to its radius when radius is 7. तो अब जब आपको रेडियस दे के रखा है 7, तो आपके पास में एक ही जगह है पुट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, dv by dr, वॉल्यूम इसका कितना चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस एट r इज इक्वल्स टू 7, इसको ऐसे लिखते हैं 7 सेंटीमीटर, इट शुड बी इक्वल्स टू 4 की जगह पर 4 ही रहेगा, पाई की जगह पर पाई ही रहेगा, तो अपन इसको 22/7 लिख देते हैं, इंटू r स्क्वायर की जगह पर 7 × 7।
आर स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया। एक 7 से एक 7 कैंसिल, 22 इंटू 4 इज 88 इंटू 7, 7 8 are 56, 6 5, 56 and 5 is 61, 616। अब यूनिट्स ध्यान रखना, उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो dv बाई डी आर, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे आपने सेंटीमीटर में लिया हुआ था, और डी आर क्या होगा, सेंटीमीटर। सो dv बाई डी आर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज व्हाट, dv बाई डी आर। आंसर आ गया आपका, इट्स सो सिंपल, गॉट इट। आपको केवल क्वेश्चन पढ़ना है, आपको ये देखना है चेंज क्या हो रहा है। आपने यदि केवल ये 5 क्वेश्चंस भी देख लिए गाइस, आप 50 क्वेश्चंस कर सकते हो। दैट्स सिंपल। इट्स नॉट दैट आई एम टीचिंग लाइक दिस, एवरी टीचर विल टीच यू लाइक दिस इटसेल्फ। सो लेट्स सी गाइस, let's move on to the next question and let's rub this question off so that जगह हो जाती है, इसकी हेडिंग को भी उड़ा देते हैं अपन। Okay, let's move on to now the question number 2. Find the rate of change of area of the circle. Find the rate of change of area of the circle. जब तक मैं यहां तक पढ़ता हूं तो मुझे मालूम पड़ चुका है कि एरिया अपॉन टाइम की बात कर रहे हैं। यदि आगे उन्होंने विथ रिस्पेक्ट टू नहीं बोला होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। इसका मतलब वो dA बाई dt नहीं पूछेंगे मुझसे, क्या पूछ रहे हैं, dA बाई dr। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं, फिर मैं लिखूंगा, उन्होंने मुझसे बोला है एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल should be equals to pi r square, right? Area of the circle यही होता है। If area of the circle is pi r square, then अब वो मुझसे बोल रहे हैं dA by dr यदि मैं करूंगा एरिया with respect to radius, और क्या पूछा है निकालने को, how fast is the area changing with respect to radius when radius is 3। सेम काम, dA by dr ऑपरेटर r है, यहां पर भी r है, तो ये क्या करेगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 पाई r, करेक्ट। कितने पे निकालना है dA बाई dr आपको, 3 सेंटीमीटर पे, तो यहां पर लिखोगे dA अपॉन dr एट r should be equals to 3 सेंटीमीटर and it should be equals to 2 पाई into 3। अब चाहो तो पाई की वैल्यू पुट कर दो, लेकिन इस बार वो कुछ कैंसिल ही नहीं होने वाला, सो आंसर आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर्स, क्योंकि एरिया इज व्हाट, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। सो आंसर आ गया आपका 6 पाई सेंटीमीटर्स, करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। गाइस ये इतना ही सिंपल है मैथ्स। ओनली थिंग इज आफ्टर वॉचिंग वीडियो 2-3 क्वेश्चंस भी कर लिए ना तो भी सेट है। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 goes something like this. An edge of a variable cube, मतलब cube, okay, cube का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज x cube. So an edge of a variable cube is increasing at the rate of 10 centimeter per second. अब की बार यूनिट भी चेक कर लो साथ में, इस बार उन्होंने क्या देके रखा है, an edge of a variable cube is increasing, increasing में अभी मैंने आपको बताया था पॉजिटिव साइन होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। So an edge of variable cube is increasing at the rate of 10 centimeter per second. So that means ये हो गई उसकी लेंथ और ये हो गया टाइम। इसका मतलब ये dx by dt दिया हुआ है, तो यहां पर लिख लेते हैं let x be the side of the cube, side or edge of cube, correct? So according to the given data, dx at the rate of 10 centimeter per second, so dx by dt, मुझे कैसे मालूम पड़ा, सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, सेंटीमीटर x साइड है, साइड का मेजर सेंटीमीटर में ही होता है, एंड टाइम, सो dx by dt कितना दिया है, 10 centimeter per second. An edge of a variable cube is increasing at the rate of 10 centimeter per second. How fast is the volume of the cube increasing? When edge is इतना सेंटीमीटर long, how fast is the volume of the cube increasing? इस बार उन्होंने with respect to कुछ दिया है,
नहीं, इसका मतलब है इस बार वो किस पर आ चुके हैं, हाउ फास्ट, मतलब वो टाइम से कंपेयर कर रहे हैं। तो वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब शुड बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्योंकि आपने एक्स को साइड माना था, तो यहां पर आ जाएगा dv बाई dt, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर अब की बार आपने टाइम क्यों लिया, बिकॉज यहां पर दे आर क्लियरली मेंशनिंग हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो dv बाई dt इट शुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आगे कर दो, 3x स्क्वायर dx बाई dt। सर नहीं आया समझ में, लेट्स सी, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब, लेकिन प्रॉब्लम ये, यदि आपने इसको dv बाई dx किया होता तो ये 3x स्क्वायर ही होता, ये आगे आता ही नहीं। लेकिन अभी आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t के रिस्पेक्ट में, एंड हेंस इट बिकम्स व्हाट, अ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो इसका मतलब है dv बाई dt, क्योंकि मैंने t लिया है लेकिन यहाँ तो t है ही नहीं। अब यदि यहाँ पर t नहीं है तो इसका मतलब इसको कांस्टेंट समझ के जीरो मान लो, बट उससे तो आंसर जीरो आ जाएगा। सो व्हाट आर वी डूइंग, सिंस दिस इज आल्सो वेरिएबल, रेडियस इज आल्सो चेंजिंग, मतलब साइड इज आल्सो चेंजिंग, हेंस वी हैव टेकन दिस एज वेरिएबल 3x स्क्वायर वो तो डिफरेंशिएशन, एंड x का डिफरेंशिएशन dx by dt आया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, सो लेट्स पुट दिस वैल्यू, सो dv by dt 3x square, what is dx by dt, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब उन्होंने कुछ दिया है क्या कि x कितना होना चाहिए था, when edge is 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो अपन क्या करेंगे, dv by dt at x is equals to 5 पर कितना हो जाएगा, 5 square into 10, 3 into 25 is 75, 75 into 10 is 750, and what is the unit, वॉल्यूम की यूनिट हो जाएगी कितना, सेंटीमीटर क्यूब, एंड dt is आंसर खत्म। 5 into 5 25 into 3 75 into 10 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। You only need to have patience till these 5 questions exercise will be done, remember, okay. Let's move ahead. Let's move ahead to question number second भी हो गया, third भी हो गया, so let's rub it. Okay, so let's move on to question number fourth, a very important question. This question was given in the previous year state book as well as the CBSE book both. A stone is dropped into a quiet lake. एक स्टोन को आपने पानी में डाल दिया, जब आप पानी में डालोगे तो उसके रिपल्स बनना चालू हो जाएंगे और वो रिपल्स धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाते हैं, करेक्ट। अब खुद सोचो वो रिपल किस शेप में होगा, राइट। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at a speed of 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वो क्या देके रखा हुआ है, दैट इसका जो रेडियस है वो कितने का इंक्रीज हो रहा है, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो लेट्स राइट, दैट मींस dr by dt, रेडियस इज चेंजिंग 3.5 सेंटीमीटर बाय सेकेंड, ये आ चुका। At the instant when the radius of the circular wave is 7.5 सेंटीमीटर, आपको r ऑलरेडी गिवन है, r should be equals to 7.5 सेंटीमीटर, ओके। हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, सर्कल में वॉल्यूम नहीं होता, एरिया होता है। तो अब दे आर सेइंग, आपको बस ये देखना है कि वो किससे, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट बोल रहे हैं। एट द इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब टाइम, एट दैट टाइम when the radius of the circular wave is 7.5 centimeter, how fast is the enclosed area increasing, एरिया कितने टाइम में कितना बढ़ रहा है। सो यहां पर आ जाएगा दैट डी ए बाई डी टी आपको निकालना है, बाय द वे वो क्वेश्चन मार्क है, ओके। खैर, सो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल शुड बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। उन्होंने आपको बोला था डी ए बाई डी टी, सो डी ए बाई डी टी शुड बी इक्वल्स टू
2 आगे आ जाएगा r, लेकिन यहाँ पर तो dt है, यहाँ पर t है ही नहीं, तो r को क्या करोगे, क्योंकि वो वेरिएबल है, यू नीड टू पुट पेरीमेट्रिक फंक्शंस और पैरामेट्रिक फंक्शंस, सो इट विल बी dr by dt। यदि आपको ये समझ में आ गया कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज एरिया इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेडियस भी टाइम के हिसाब से ही चेंज हो रहा होगा, दैट्स द रीजन व्हाई। नाउ लेट्स स्टार्ट पुटिंग डाउन द वैल्यूज। सो dA by dt तो कहीं पर दिया ही नहीं है, अच्छा वो तो निकालना है आपको। It is 2 pi, what is r? R is 7.5, so r is 7.5. What is dr by dt? It's 3.5. पाई को चाहो तो अभी आप 22/7 भी कर सकते हो, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। 7 is 7, 7.5 is correct. Now see the calculation. 2 into 0.5, 2 into 0.5, सिंपल कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। 2 into हाफ करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1, so 2 into 0.5 is 1, 1 into 22 is 22, तो 22 into 7.5, मुझे बस केवल उतना ही मल्टीप्लाई करना है, 22 into 7.5। okay, so let's do this, that is 7.5, 22, 10, 0, 1, 14, 15, then again 0, 5, 6, 1, 1, 1, 165, so answer is 165। and what is the unit? एरिया बोला है with respect to time, तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए, और टाइम के लिए आ जाएगा बाय सेकेंड, दैट्स ऑल, आंसर खत्म, पैसा आ जाओ। अरे मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ गाइस, चैप्टर ही बहुत सिंपल है। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 5। यदि ये टॉपिक आ गया गाइस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, थिंग्स विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू। सो लेट्स मूव ऑन टू लास्ट 5, तो अभी बहुत जगह है, सो लेट्स नॉट रब क्वेश्चन नंबर 4 unnecessary। Okay, so question number 5, a particle moves along the curve 6y is equals to x cube plus 2। प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, यदि यहाँ पर x क्यूब नहीं होता और केवल 6y is equals to x plus 2 होता, then it would have become linear equation। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन की बात चल रही होती, बट अभी ये क्या है, कर्व है, तो कर्व है, तो लेट्स राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज y is equals to 6y is equals to so particle moves along the curve 6y is equals to x cube plus 2। एक पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी या पाथ देकर के रखा हुआ है जिस पे चल रहा है। फाइंड द पॉइंट्स, हमें नहीं मालूम कौन से पॉइंट्स हैं, जब मालूम ही नहीं है, सो लेट्स राइट, लेट द कोऑर्डिनेट्स बी x, y। कैसे मालूम पड़ा मुझे, उन्होंने ही बोला है ना फाइंड द पॉइंट्स, तो जब भी कभी आप कोऑर्डिनेट फाइंड करते हो तो दो ही तो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x और y, तो x y। ओके, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स मतलब x और y फाइंड करना है, तो अपन ने x y लिख दिया कुछ भी नाम दे करके, आपको चाहिए आप mn भी दे सकते हो, a, b भी दे सकते हो। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, इसका मतलब y कांस्टेंट नहीं है, y चेंज हो रहा है, y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। y coordinate is changing as fast, टाइम की बात कर रहे हैं, y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। y coordinate is changing as fast मतलब कितने टाइम में y coordinate चेंज हो रहा है, 8 times उतना ही x coordinate भी चेंज हो रहा है। Now they are saying find the points। ये रहा। So let's talk about this equation। So 6y, so differentiating both the sides, the equation number 1। So ये आ जाएगा 6 dy by dt। मैंने जानबूझ के पूरी इक्वेशन को with respect to t डिफरेंशिएट किया, तो अभी मैं लिख दूंगा साइड में 6 dy by dt should be equals to 3x square dx by dt, और ये तो गाइस +2 ही है, वो तो खैर 0 ही हो जाएगा जब डिफरेंशिएशन करोगे कांस्टेंट का। सो ये आ चुका है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग
both sides with respect to t. So let's now start writing guys. So यहाँ पर कितना हो जाएगा, that is 6 dy by dt should be equals to 3x square dx by dt. Can I put dy by dt की जगह पर ये वैल्यू 8 times of dx by dt? So let's put this 6 bracket dy by dt की जगह पर 8 times of dx by dt should be equals to 3x square dx by dt. So if you will see this, dx by dt will get cancelled, or 6 into 8 will be 48 should be equals to 3x square, or 3 ones are 3, 3 ones are 3, 3 6 are 18, or x square should be equals to 16, or x should be equals to square rooting both the sides, it will become plus minus 4. जब x की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो चुकी है, अब आप क्या करोगे? सिंपल पुट कर दो ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर. आपको तो कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने थे ना. सो लेट्स फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट. सो यदि मैंने यहाँ पर 4 रखा x की जगह पर, so 6y should be equals to 4 into 4 into 4 is 64 plus 2. Am I doing the right thing? Hopefully. Okay, so 6y should be equals to 4 का cube is 64 plus 2. So 6y should be equals to 66 और y should be equals to 11. तो पहला कोऑर्डिनेट क्या आ चुका है आपके पास में? That is 4, 11. ये आ गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट. x का 4, y का 11. अब x का -4 लेते हैं, तो let's put it back into the equation. 6y should be equals to -4 का cube is -64 plus 2. 6y should be equals to -62. y should be equals to -62 upon 6. 2 3s are 6, 2 3s are 6, 1. Our answer is -31 by 3. That's all. So here is the answer guys. ये हो चुका आपके पास में आंसर. सो एक आपका इस बार आंसर कितना आ रहा है? दैट इज y. एक कोऑर्डिनेट आ चुका है 11. नो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाज 4, 11 and the second coordinate was -4, 31 by 3. And that's all guys. So this is the answer to your question. Fine. Okay. Just in the case if I have done some mistake guys, do let me know, but I don't think I have. But even if I did, I'm not God, let me know. Anyway guys, thank you so much guys. Just one sincere request. I've just randomly taken around 4 or 5 questions, 1 from the state or 2 from the state and remaining 3 from the CBSE. Take your time to grasp this, see this video again and again, and then enjoy guys. Thank you so much. Take care. Bye.